Okay, good evening everyone. Audible? Yes, sir. Yes, Audible, sir. sir. Good. Okay, so let us start with any doubts. Then after we'll talk about सर ये table कॉल बैक bounding. फंक्शन सर एक बार और समझा दीजिए सर. कॉल सर बैक फॉर फंक्शन ईच और डिटेल में देखेंगे, बट फॉर ईच में अगर कंफ्यूजन है तो फॉर ईच में री एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ यस सर फॉर ईच एक बार एक हाँ, एक्सप्लेन मैं कर री दीजिए. एक्सप्लेन करता हूँ फॉर ईच, नॉट अ बिग डील. Yes. बट इसके अंदर जो कॉल बैक है ना, वो सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट में काफी डिटेल में देखेंगे. बट अगेन सिंपली जब आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के इनसाइड पास कर सकते हो, दिस इज पॉसिबल इन जावा स्क्रिप्ट. सो जो फंक्शन आप पास करते हो उसको हम कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो मैं बिगिनिंग से बता देता हूँ एक बार फॉर ईच को. ठीक है, तो मतलब ऐसे तो ये अप्लाइड वर्जन है एक तरह से, कि अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, then you can take that approach with the help of for each. You can solve this particular problem. But again, for each को at minimal understand करने के लिए we have to have an array. तो चलो एक array create करते हैं, and then after we will learn about for each, and then after we'll move forward. थोड़ा सा dog traversing अभी pending है, तो we will do that. Okay, so I'm just going to explain it again. Okay, इसको मैं यहीं पे कमेंट करता हूँ, and let us start with the array. Simple. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ अरे. या फिर चलो पहले कॉल बैक एक बार मैं लाइट वर्जन एक तरह से आपको समझा देता हूँ, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट फॉर ईच, क्योंकि देयर इज यूज ऑफ कॉल बैक. ओके, सो कॉल बैक फंक्शन is a function which we usually pass it as argument. Okay, so let us create a function. ठीक है, जैसे let us create a function fun1, and let us just create a body, and simple, it is a simple function. Okay, nothing more than that, not required anything. It's a simple plain JavaScript function. This is what we call function declaration or function definition. But one way, this is the one way that we already know about it, but there are other ways of creating functions. Okay, so there are other ways. For example, you can create a function expression, what we call, means you can assign a function inside a variable. Okay, so you don't need to provide a name for that. So for example, I'm just going to create a variable or fun2 equals, or you can definitely create a not one. You can also assign fun1 in that too. Okay, totally fine. Look, it is definitely, it is totally possible to assign a function inside another function, but you can pass it too. So I'm just going to create like a fun2. No, just a function. Okay, because fun2 variable is already there, so you don't need to. This is also valid way of creating functions. Okay, you can call it by using this name, exactly like this one. If you want to call this function, you must use like fun1, and if you want to call this particular function expression version, you will use that fun2, the variable name you will use. Okay, and it works without any issue. Simple. Okay, don't trust me, so let us log something. Console.log. Okay, one working, and you can call that too. For example, let us provide it a body, console.log. 2 is also working, so I'm just going to put a message here. Working. Okay, so simple enough. And if I save and open the console, you can, console, you can see both log we are getting, because we have called fun1 as well as fun2. Totally fine. Okay, so this is what we can little bit trick with the functions. Okay, so this is function declaration and this is the function expression. But एक और चीज आप कर सकते हो, you can do one more thing with the JavaScript. You can pass a function inside another function. Totally
valid, totally possible. Okay, so I'm calling this fun1. Okay, and if you want to pass something in here, definitely you are going to use this one. At the time of calling, you pass the data, and I'm interested in passing the fun2 in it. Okay, I'm not going to call it. I'm just going to use fun1 and pass fun2 inside there. Totally valid thing. Okay, so I'm passing a function in here, so it must be ready to receive something. Okay, whatever variable name, argument, parameter name you want to provide, just provide it, like fun only. Okay, and let us you can call it now. Okay, so not console.log, you can just do fun and just put a calling signature here. Okay, so good. And if you call fun1, this function 2 will called, but inside the function 1, right? Okay, I'm just going to Yes, remove sir. this one. Okay, so this is totally fine. In JavaScript, we can do this kind of trick or things or arrangement. In every language, it is not possible. But if I save, you can see I have just called only function 1 here and supplied function 2 here. Means this whole function is available here and passed inside this function. Means it's like expression. Na? Now it is what? Fun equal to this function, right? Yes, sir. Okay, fun equal to this function क्योंकि वही pass कर रहे हैं हम लोग, we are passing the same, and now we are calling it inside that. Okay, so if I call this whole body will execute as well as this fun will call. That means this function. So it will log this one as well as this one too. Okay, so that is what happening here. 2 is working because this called earlier, na? Okay, and then yes. Sorry, fun is the parameter, no? Fun is the parameter. The parameter is called as function. Yeah, because we are passing a function inside a parameter, na? We are passing this whole function. Fun2 is what? It is a function, right? Yes, yes. Okay, so now we are passing fun2 means this whole function to the fun1. So still it is a parameter. It can receive anything as well as functions too. Okay, so it's kind of happening like fun. It's like happening something like that. Fun equals this whole function. Okay, it's kind of creating functional expression again. Okay, in right here, and now we are calling this function inside here. Okay, so good. So abhi hum log kya kar rahe hain, we are just passing a function inside another function and we are calling it inside, and this type of function is called callback function. We are calling inside it another function. That's why it is called callback function. Okay, so this is callback. We will discuss it later. We will use it in mostly in asynchronous programming. That is an advanced part of JavaScript, and we will discuss that too. And we will create a weather forecasting application too. Going to be very interesting one. तो उधर हम लोग क्रिएट करेंगे एक वेदर फॉरकास्टिंग एप्लीकेशन विद द एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट. बट अभी के लिए जस्ट think कि you can pass a function inside another function without any issue. Okay, and it is working. Okay, so good. And this is what we call callback function, because we are passing it and then calling it back from another function, and this is totally valid. It is not making any sense ki why, what nonsense is that ki why even we are trying to do that, but it will make sense in asynchronous part. Okay, in asynchronous part, because we will kind of there is some return. I haven't used return yet here because in some scenario it will not work. Okay, so we will find it out in the asynchronous segment, but this is what we call callback function. Okay, so चलो हम फॉर ईच क्रिएट करते हैं. ठीक है, कॉलबैक को इधर ही रहने देते हैं जस्ट फॉर रेफरेंस कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर हमने पास किया. सो लेट अस क्रिएट अरे हियर. आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वॉर माय अरे, और इसमें हम लोग रखते हैं, लेट अस पुट सम वैल्यूज इन हियर. 3 not dot, you can put it, fractional values are also allowed, but for now I'm just going to use this simple array, and I want to loop over it.
ठीक है, मुझे इसमें से कुछ डेटा चाहिए, ऑल डेटा आई वांट टू एक्सेस और इनम्यूरेट. Okay, so definitely we can do that with the help of for each. Okay, so for each is a special designed method available inside the array. Array के अंदर वो रेडीमेड फॉर्म में स्पेशली डिजाइंड मेथड के फॉर्म में यानी फंक्शन के फॉर्म में वो अवेलेबल होता है. ठीक है, अभी ये कहाँ से आता है, वी विल टॉक इट अबाउट इन प्रोटोटिपिकल इनहेरिटेंस. आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर आपको अपने किसी डेटा के साथ फंक्शन बाइंड करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट. ओके, वी विल टॉक इट लेटर इन like advanced JavaScript. Okay, but अभी के लिए let us focus on the inner working की work कैसे करता है. So I pick my array and I just put a dot right here and you can see we can do several things with this array. Okay, and we will learn lots of them. Okay, इसमें से सारे almost सारा हमें cover करना होगा except some ones which are we don't use much frequently. Okay, so we will skip those, but we will learn lots of them. Mute Govind. ओके, सो हमारे पास ये अरे है. अब इसके ऊपर लूप ओवर करना है हमें, और ये बहुत ही कॉमन केस है. ठीक है, आपको अरेज के ऊपर लूप ओवर करने आना चाहिए इन मच मोर बेटर फैशन, और फॉर ईच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. बट ऐसा नहीं फॉर ईच ही है, देयर आर अदर मेथड्स टू. मैप है, रिड्यूस है, सारे के सारे लूपिंग का ही वर्क करते हैं. वी विल सी दैट. ओके, सो माय अरे आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन फॉर ईच, so I'm just using for each, and for each is a method that is available, and it task is to loop over the array. So it will run for each and every element of the array, and what it will do, it will call this particular function what we are going to provide inside it. Like let us create a function, so you don't need to name it because for each will call this only single function, so you don't need to provide a name for it. You can put it as like anonymous function without name. So I'm just going to provide it, and that's it. Everyone is happy. Okay, this is a simple syntax for each. For each का ही simple सा syntax है. For each के अंदर हमें एक callback पास करना होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग इधर ये कर रहे हैं. ठीक है, मतलब मैं यहाँ पास करके दिखा भी देता हूँ, मतलब नेम के थ्रू नहीं पास कर रहे हैं, बट वी आर पासिंग इट समथिंग लाइक दैट. यही कर रहे हैं हम लोग ने. ये फॉर ईच है और उसके अंदर हम लोग एक कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे हैं. तो क्या होगा, इधर फॉर ईच के अंदर वो फंक्शन रिसीव होगा एंड इट विल गेट कॉल्ड. तो इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. ठीक है, अभी ये कैसे वर्क कर रहा होगा फॉर ईच, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. जस्ट रिमेंबर फॉर ईच एज अ टूल कि हाँ ऐसे वर्क करता है. इफ नीडेड वी विल यूज दैट टूल. सिंपल. तो फॉर ईच, और इसमें क्या हमने for each what it will do, it will loop for each and every element of the array. ठीक है, आपको अब इंडेक्स का कंट्रोल नहीं रखना. you don't need to provide some condition कि when the loop is going when condition is going to be false and the execution will stop. आपको increment decrement नहीं करना. you don't need to do anything. everything will taken care by the for each simply. Okay, so for each, and how it work, it will pass each and every element as argument of this callback function. This is what we call back, because we for each internally calling it back. Okay, for each internally calling it back inside their implementation. उसके implementation में ऐसा ही कुछ उसका भी implementation होगा, for each का भी, और उसके अंदर वो उसको कॉल कर रहे होंगे. they are passing some data in it. we are not interested in that for now. Okay, we will see. आपको ये समझ में आएगा जब asynchronous वाला पार्ट हम लोग कवर करेंगे तब. Okay, so for each will pass each and every element inside this particular callback function. Okay, अब पास करेगा तो डेफिनेटली उसको एज ए आर्गुमेंट हमें देना होगा. तो यहाँ पे वॉट एवर नेम यू वांट टू प्रोवाइड, जस्ट प्रोवाइड इट. फॉर एग्जांपल item. Okay, and now that item is available inside the function, so we can use that item right in the function. Okay, so let us do that. So I'm just going to log it, but you can do whatever operation you want to do with each and every element. Okay, so for each is very good. Okay, you want to do a common operation for each and every element, definitely you can do that. You want to multiply something in each and every element, definitely you can do. Okay, so I'm just going to log it for now, item, and if I save it,
you can see every information is getting printed out from the array. This is very handy, a very simple thing. Okay, so how it is working? 2 is getting passed in this particular variable, or what we call parameter, and this is getting logged. 6 logged, 7 logged, and how many times will execute? The length of the array. We don't need to control the length and all the things. Everything will is implemented internally in for each segment, so you don't need to do anything else. Okay, so it is ES6 feature, the newer version. In older version ES5 it will not work. Okay, so this is what internally happening. यहाँ पे भी क्या हो रहा होगा, ये फंक्शन उधर जाके कॉल कर रहा होगा फॉर ईच अपने अंदर, जो इसका बॉडी का इम्प्लीमेंटेशन होगा, और वहां से it will be doing lots of things, but we are not interested in that for now, but we will discuss, we will decode कि कैसे वो internally work करता है. Okay, so this is the structure. ठीक है, ये हमारे पास सिंपल फंक्शन है, और यू कैन सी कि इसको हम यूज भी कर सकते हैं इन प्रोडक्शन लेवल. ये सिंपल सा वर्किंग है. सपोज आपको आइटम्स को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो डेफिनेटली यू कैन डू आइटम टाइम्स 2, एंड डेफिनेटली आपको देखो अब मल्टीप्लाइड बाय 2 में मिलेगा हमें. ठीक है, आई एम जस्ट परफॉर्मिंग अ सिंपल ऑपरेशन. You can do whatever you want to do with each and every element of that particular array, and this is very useful cases. ठीक है, इसको we will use it on daily basis in the in industry. Okay, so good, we can do whatever operation we want to perform over each and every element of the array. We don't need to manually pick an item based on index and something. No, you can do it automatically. Okay, so good, this is how for each work, or either we have implemented it for once. Okay, we have selected and we got like node list or something, and we can loop over it, because node lists are also like arrays, they also have for each. Okay, for each is available in node list too, so we can use for each here, and you can see each and every element will passed from this elements array to this particular argument or parameter, and now we are checking the condition for which we are using or what we are doing. Okay, ठीक है, ये for each now. Okay, yes sir. Yes, sir. okay, so good, so let us move forward. ठीक है, धीरे धीरे करके लर्न करेंगे. सारा मेथड एक बार लर्न करोगे तो बोरिंग हो जाएगा. Okay, so we done. चलो DOM में ही हम अभी हैं, we are in the DOM segment still. Let us do the traversing. Okay, DOM traversal. अभी DOM traversal भी ट्राई करते हैं. Yes. The screen is visible. Yes sir. Yes. Okay, तो अभी Yes, हम sir. लोग क्या करते हैं कि let us try to traverse the DOM. Traversal का मतलब कि you know how to grab a element from the DOM. DOM से आपको element grab करने आता है, but after grabbing that element, how to move upward, downward in the DOM tree, what it is called DOM traversal, means moving through the DOM. Okay, so let us try to do that. वो try करते हैं हम लोग. Okay, so let us select one item and then do that. So I'm just going to squeeze it right here, and let us select something. So let us इधर आते हैं हम लोग, and yes, we have something here. Okay, and we can grab, let us put a div or some other things here. For example, let us wrap it in like article or any other tag. Okay, so that we can get a parent child relation. हमारे पास parent child relation होगा, तो you will see कि कैसे आप easily parent से child, child से parents पे कैसे move करते हो. So I'm just going to provide it a article tag for now. Article, and let us close the article right there. Just closing tag I need. Good. So article, and let us put a div also here. Okay,
whatsoever you want. So ठीक है, that is enough. But if you want, just for interest, this is my div. ओके परफेक्ट. तो अब हमारे पास सिंपल सा पेज सेगमेंट है. गुड. तो चलो ट्राई करते हैं कुछ ग्रैब करने का. तो आर्टिकल को ग्रैब करते हैं. आर्टिकल को ग्रैब करना है तो वी कैन यूज क्वेरी सेलेक्टर. और इसमें अभी हम लोग ओनली वन आर्टिकल एलिमेंट इज अवेलेबल ऑन द पेज, तो हम इजीली क्वेरी सेलेक्टर यूज करके और वी कैन ग्रैब दैट होल एलिमेंट. तो क्वेरी सेलेक्टर को यूज करते हैं. तो लेट अस ट्राई टू ग्रैब दैट. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज var. अगेन यहाँ पे हम const यूज करेंगे आगे चल के, बट वी डोंट नो येट let and const. तो we will discuss it now. Time is coming. Okay, so we'll discuss it. What are the differences? And definitely it is preferred कि first go with const, then let, and if you don't have any other option, then go for var. Var is the var has to be last choice because it may cause some serious problem in code optimization. So I will let you know कि कहाँ पे use करना है कौन से को पहले, but usually हम लोग यहाँ पे const use करते हैं. ठीक है, तो आप you can create constant type of variable too, but I'm just going to use var for now. Article equal document dot get element by, or query selector all, or only query selector, because only one article is there. Perfect. And let us move through it. ठीक है, अभी सपोज मुझे सारे के सारे चाइल्ड चाहिए थे इसके. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, डॉट चिल्ड्रन में कॉल कर सकते हो. इट्स अ प्रॉपर्टी. लेट अस लॉग इट. console.log. I'm moving through the DOM. अभी हमने एक एलिमेंट को ग्रैब किया from the DOM. Now it's time to use that element to traverse the DOM. Means move upward, downward in the DOM tree after selecting or picking up one element from the DOM tree. तो मुझे child चाहिए इसके. I have selected the parent. I need child of it. So definitely you can go inside with the help of children property. So article dot children. Okay. And you can see अभी इधर लॉक करते हैं तो you will see कि आपको सारे के सारे चिल्ड्रंस मिल रहे हैं इसके. राइट, 8 आइटम्स है ना इसमें. you can count 1 2 3 4 5 6 7 8. so those items we are grabbing, okay, in the form of HTML collection. so we can collect the children. अगर आपको आर्टिकल लेना है तो you can grab the article too. this is the article, but I need the children of it. okay, children means उसके अंदर आने वाले जो elements है, I need that. so you call the children property. so you will get graph all the childrens. okay, so we are getting h1 p div. everyone is children right now. this through this, right? Yes, sir. okay, so you can use the children property. आपको अगर पेरेंट्स चाहिए तो आप वो भी यूज कर सकते हो. you can also use like from, but ठीक है अभी again आपको अगर ना इधर HTML collection ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक मैं बता देता हूँ. that is a very important. as I told you कि HTML collections are like limited version array. okay, limited means कि ऐसा नहीं कि more powered, less powered version of array. okay, so we don't have for each for that. ठीक है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि अगर आपको HTML कलेक्शन है तो उसको अरे में कैसे कन्वर्ट करोगे, क्योंकि मुझे पता है अगर इस पे फॉर ईच लगाना है तो HTML कलेक्शन के पास फॉर ईच नहीं होता है. ठीक है, अरेज के पास होगा, नोड लिस्ट के पास वी हैव फॉर ईच मेथड. तो इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर ईच ऑन HTML कलेक्शन, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क. डोंट ट्रस्ट मी, लेट अस ट्राई इट. okay, so I am just going to put a for each here. so article dot children. So this whole thing will return a HTML collection. You can, if it is an array, you can put a dot here and you can use for each. okay, but you can see the dot put करने के बाद I'm not getting anything. I'm just getting the length, item, and some limited properties, not all the features of an array. so definitely for each is not going to work here. तो हमारे पास स्मार्ट वे क्या है कि in case if you get a HTML collection, it's a good way to convert that HTML collection in an array.
and this is totally possible, you can do. So I'm just going to let you know the trick, but you will get clear vision when we talk about the constructor function that is upcoming. Okay, so but abhi ke liye just use it as a tool कि कैसे आप HTML collection को arrays में convert कर सकते हो, so that you can use for each over that. तो चलो उसको करते हैं. So again we have HTML collection and now we want to convert it in an array so that we can use for each over it. हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस इनको हम बोलते हैं. ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं कि सिंपल फंक्शन होते हैं. फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हो, मैं एक बार कंस्ट्रक्टर फंक्शन का एग्जांपल दे देता हूं, देन आफ्टर वी विल यूज दैट कंस्ट्रक्टर फंक्शन. ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग आप क्रिएट करते हो, var like email equals gmail.com. So you can see simply I have created a simple string here. Okay, तो string को create करने का एक और वे है constructor वे, इसको हम लोग बोलते हैं literal way. Okay, you can create string literals with the single quotation, double quotation as well as template literal, the backtick sign if you remember, जिसमें हम dollar curly bracket use कर रहे थे, right? So you can create a string in that way, but there is one more way, what we call the constructor way. So every type, whether it is array, whether it is object, whether it is a string, every reference type has its own constructor. ठीक है, और अपना constructor आप create भी कर सकते हो. We will see कि कैसे constructor functions create करते हैं. Again that is also upcoming advanced JavaScript. So अभी के लिए चलो string को create करने के लिए हम लोग string constructor भी use कर सकते हैं. तो all constructor start with the uppercase S and it's a simple function. Okay, nothing more than that, it's a simple function. I'm just calling it because that is string constructor is already defined in the JavaScript library, so we can directly call it without creating it. Okay, so string, and this is simple constructor. You can call like this, and you can supply string here. Okay, so this is constructor way. Or better way, string constructor way, because several objects have their own constructor. Okay, it's a simple function. You can see कि string uppercase s use किया, उसमें information supply किया, and now it will give you the string again. Okay, exactly same way. So equal sign, and you can store this string. For example, var and my string, मैंने variable कर दिया, and everyone is happy. आप इसको log करके check करो, you will get the string console.log and my string. Okay, save करते हैं, and you can see exactly same way में जैसे हमारे पास string होती है वैसा ही है. ठीक है, तो this is what we call the constructor, string constructor. ऐसे हम अपना भी constructor आगे चल के create करेंगे, but there are several ready-made constructors are available to construct the things. जैसे हमने object create किया, curly bracket use कर रहे थे to create object, but object को भी create करने के लिए there are ready-made constructors जिसको हम object ही बोलते हैं, uppercase O B J E C T. ओके, सो ऑब्जेक्ट अपर केस से ऑलवेज स्टार्ट होगा. अगर मैं लोअर केस करूंगा तो ये फंक्शन हम कॉल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस नेम का कोई फंक्शन है नहीं, तो कहेगा अनडिफाइंड फंक्शन. ठीक है, स्ट्रिंग इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो कह रहे कि है ही नहीं, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, तो वी नीड टू यूज द अपर केस एस एंड देन अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन लोअर केसेस. ओके, सो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो ये लिटरल वे है, दिस इज कंस्ट्रक्टर वे है. ठीक है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हैं, जैसे अरे कंस्ट्रक्टर है. अरे को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अरे लिटरल वे में क्रिएट कर रहे हैं, अभी बस ऐसे यूज कर ले रहे हैं और इसमें डेटा फीड कर दे रहे हैं. इट इज वर्किंग, बट आप अरेज को कंस्ट्रक्टर वे में भी क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए हमारे पास एक होता है अरे कंस्ट्रक्टर. ठीक है, और क्यों कंस्ट्रक्टर मैंने बताया, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत है उसकी, जरूरत इन द सेंस कि आई नीड टू कन्वर्ट दिस HTML कलेक्शन इन अरे, आई कैन फॉर ईच ओवर इट, इसके ऊपर मैं फॉर ईच चला पाऊँ. ठीक है, क्योंकि इस पे नहीं चला सकता HTML कलेक्शन पे. तो चलो कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. तो अरे कंस्ट्रक्टर, यू कैन सी दिस इज, तो अगर अरे आपको क्रिएट करना है तो डेफिनेटली आप इसमें एलिमेंट आइटम पास कर दोगे
you will get a array. ठीक है, but I don't need that for now. I need kind of conversion thing. ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर के पास एक और फंक्शन होता है इसके अंदर. ठीक है, फंक्शन कैन हैव फंक्शन, एज यू नो जावास्क्रिप्ट में टोटली फाइन ना, फंक्शन कैन हैव another function. Okay, the constructor function है, इसके अंदर some other functions भी हो सकते हैं और method we can say. तो ये array constructor के पास एक method होता है जिसको हम from बोलते हैं. From मतलब कि से, मतलब उसको convert करना है, मतलब कौन सी information को convert करना है. तो मैं यहाँ पे डॉट यूज करूंगा और देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं, कॉल, अप्लाई, बाइंड, अरे कंस्ट्रक्टर के सारे प्रॉपर्टी है. कंस्ट्रक्टर के प्रॉपर्टी, पे अटेंशन, these are not property of arrays, these are the property of constructor, array constructor. Okay, तो यहाँ पे कॉल, अप्लाई, बाइंडिंग, we will talk about it later, ये हम understand करेंगे again. But I'm interested in from method. You can see वो बता भी रहा है editor कि this is a method, you can call that a method. Okay, और you can see कि मैं कुछ भी यहाँ पे अभी logical नहीं, I'm not doing anything logical. जो available tools है, I'm using those tools, nothing more than that. ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, बस सप्लाई कर देना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन को अरे में कन्वर्ट करना है. तो मुझे कन्वर्ट करना है इसको. ठीक है, क्योंकि इट्स एचटीएमएल कलेक्शन, मैं इसको अरे में कन्वर्ट करके फॉर ईच लगाना चाहता हूँ. गुड, तो दिस विल कन्वर्ट. ठीक है, अरे डॉट फ्रॉम दिस एचटीएमएल कलेक्शन, तो इट विल गिव यू अरे इक्विवेलेंट ऑफ दिस एचटीएमएल कलेक्शन. ओके, मतलब एक तरह से हम अरे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एचटीएमएल कलेक्शन. चलो इसको स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में, तो इट विल रिटर्न, वो फ्रॉम आपको रिटर्न में देगा. तो लेट अस डू स्टोर आर्टिकल ARR. मैं इसको बस नेम दे देता हूँ टू आइडेंटिफाई कि अरे फॉर्म में हमारे पास है. ठीक है, लेट अस लॉग इट. आर्टिकल ARR मतलब अरे में हमने कन्वर्ट कर लिया. बहुत ही इजी है. ठीक है, अरे डॉट फ्रॉम यूज करना, उसमें आपको डेटा सप्लाई कर देना और इस डेटा के बेसिस पे इट विल क्रिएट अ अरे. ठीक है, सेव करते हैं. नाउ यू कैन सी कि इट इज अरे और इट इज एचटीएमएल कलेक्शन. तो ये एचटीएमएल कलेक्शन है अभी, और उसी एचटीएमएल कलेक्शन के बेसिस पे वी हैव क्रिएटेड अरे. अब इस पे फॉर ईच आप लगा सकते हो. ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं उसको भी. तो आर्टिकल अरे, सॉरी, हाँ, I think I misspelled it, but anyways variable name is that. So dot, and you can see अभी इधर for each हमें मिल जाएगा because now it is a array. अभी उधर HTML collection पे नहीं मिल रहा था. और again same process, you have to provide a function here and you callback function, and definitely you can receive like item, and I'm just going to log it over the console, but you can do whatever you want to do. Item. Okay, if I save it, so it will give me like individual element from that array, right? Making sense? Yes, sir. Sure. Okay, so you can convert HTML collection in equivalent array with the help of array dot from method. Simple, and this is constructor, nothing more than it, and it's ready made. मैंने इसको define नहीं किया, आगे चल के create करेंगे अपना constructor. We will create our own constructor function, और कैसे work करता है we will see that too. Okay, so good. So क्लास में हूँ. ओके, सो अरे कंस्ट्रक्टर. सो अभी तक हमने DOM ट्रैवर्स किया, and first instance we get HTML collection and we have converted that collection into the array to solve our particular problem. तो good. So चलो और DOM ट्रैवर्सल में और कुछ और देखते हैं. तो this is good thing. Okay, कभी भी आपको HTML collection से array कन्वर्ट करना है, just use that trick. I'm just going to comment it right here. Hello sir. हाँ. हेलो सर. तो सर आपने जैसे HTML कोड में हमने आर्टिकल किया ना, वैसे भी मैंने क्लास करके ट्राई किया था. तो क्लास करके हम कर सकते हैं कॉल. यहाँ पे क्लास आईडी कुछ भी दिया होगा हमने HTML कोड में, जैसे कॉल कर सकते हैं जैसे आर्टिकल किया था. हाँ, यहाँ पे कर सकते हो आप. हाँ, यू कैन प्रोवाइड एनी मैं क्लास करके वैल्यू. ट्राई कर रहा था. हाँ, तो डॉट आपको पास करना होगा, डॉट क्लास नेम, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर है ना. यस यस सर. ओके. हाँ, वैलिड मतलब कुछ भी कर CSS. सकते हैं ना आईडी क्लास. हाँ, you can do any हाँ. valid CSS here. Okay, any valid CSS.
ठीक है, विद क्वेरी सेलेक्टर। बट No, अगर आईडी okay, है sir. तो उसमें आपको आईडी सप्लाई करना होगा, क्लास है तो यू हैव टू सप्लाई ओनली क्लास इन दैट, ओके। Oh, But query oh, selector are okay, sir. versatile. Any Okay, valid sir. CSS will work. Okay, Okay, good. sir. Okay, so now let us move forward. और parent और sibling और दो देख लेते हैं, then after we'll do. Okay, तो for each लगा के आप इसको लॉक कर सकते हो. Even if you want to add something in it, definitely you can add something in it, or you can do several things. But चलो अभी हम लोग H2 को ट्राई करते हैं ग्रैब करने का. तो अगेन पेरेंट अगर है, चाइल्ड पे जाना है तो यू विल यूज चिल्ड्रन. But now let us try to grab something else, so that child को grab करके let us try to move upward. पेरेंट पे कैसे जाएंगे, ठीक है. तो var title equal to again document dot query selector. Again query selector is a very handy tool, okay. और इसमें I'm passing the H2 for now, so that let's say at least we can grab we don't have H2 तो हमें null मिलेगा. Let us use H1. So I'm just going to pass H1 ही है, तो I will grab the H1. Now अब हमारे पास वो child की तरह child of this one है, ठीक है, child of article है, child of body भी है. तो चलो let us try to traverse कि child हमने इसको grab किया है, and now I want to move through the DOM. इसको grab करने के बाद तो अभी इसको पेरेंट या इसके सिबलिंग पे भी जा सकते हो, टोटली फाइन. तो चलो बोथ, लेट अस ट्राई बोथ. क्योंकि देखो पेरेंट से चाइल्ड पे आना है, टोटली फाइन. चिल्ड्रन यूज कर सकते हो, और अगेन ये सारा आप डॉट कर सकते हो, टोटली फाइन. यू विल सी, अभी देखो कितना इजी बना है ये, ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉक करता हूँ. लेट अस ट्राई टू लॉग समथिंग, एंड इसमें टाइटल, ओके. टाइटल को लॉक करोगे तो यू विल गेट लाइक this thing H1. that is totally fine. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ for now, और इसको भी I don't need that for now. Okay, so I'm getting H1. good. but मुझे इसका parent चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे और you will call parent element. you can see there is parent element property, not only parent, ठीक है, parent element. अगर सेव करोगे तो you can see you are getting article. agreed, parent है ना article, इसका पेरेंट आर्टिकल है, तो वी आर गेटिंग दैट. गुड. आप इसके आगे फिर डॉट पेरेंट लगा सकते हो, टोटली फाइन, क्योंकि यू आर ऑन द आर्टिकल. इसका टोटल मीनिंग क्या है कि दिस इज द आर्टिकल, राइट. एंड यू कैन नॉट डॉट एंड मूव देयर it that particular element parent too, okay. So again you can call like a parent element. That means what, the title parent, H2 parent, article, and article's parent body. So you will get the body, and yes, you are getting the body. good. So अब अगर आपको मूव करना है by grabbing an element parent to parent upward जाना है, you can go child to child. children means all, but child करोगे तो you will get the child level element only. then you can do again the child, okay. so child property is also there, just to give it a try, ठीक है. but children is the most useful one. सर जितने पेरेंट होंगे उतनी बार में पेरेंट एलिमेंट लिखना पड़ेगा. हाँ, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि व्हाट इज द नीड. यू हैव ग्रैब दैट एलिमेंट फ्रॉम द डॉम ट्री, और आपको मैन्युअली अगर आर्टिकल सेलेक्ट नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू, इसके पेरेंट पे चले जाओगे, यू विल गेट द आर्टिकल, राइट. मतलब आपको फिर से क्वेरी नहीं करना पड़ेगा. डॉम को क्वेरी करना मतलब एलिमेंट को सेलेक्ट करना इज कॉस्टलियर, उसमें ना कंज्यूम होता है ज्यादा प्रोसेसिंग आपका, ठीक है. तो एक बार जब आप ग्रैब कर लिया आपने, मान लो H1, और इसके पेरेंट पे जाना है तो यूज द डॉट पेरेंट. अगर इसके और पेरेंट पे जाना है तो फिर से आपको डॉट पेरेंट यूज करना है. ग्रैंड पेरेंट टाइप का कुछ नहीं होता है, ठीक है. पेरेंट टू पेरेंट मूव करना होगा, ठीक है. ओके सर. हाँ, तो हेलो सर. पेरेंट टू पेरेंट. हाँ, यस सर मेरी क्यूरी थी कि सर जैसा हमको आर्टिकल HTML कलेक्शन दे रहा है, ठीक है, तो सर ऐसे और कौन से एलिमेंट्स है जो हमको HTML कलेक्शन दे. कोई भी बंडल अगर जब आप कभी भी क्लास के बेसिस पे आप करोगे, जैसे ये क्वेरी सेलेक्टर जब आप यूज कर रहे हो, मैंने बताया था ना कि कौन सा आपको HTML कलेक्शन देगा. क्वेरी सेलेक्टर ऑल आपको नोड लिस्ट देता है, बट क्वेरी सेलेक्टर जब आप ओनली वन आइटम सेलेक्ट करोगे
तो यू विल गेट द HTML कलेक्शन। ठीक है, अभी हम लोगों को HTML कलेक्शन मिल रहा था क्योंकि दिस इज द पेरेंट, और ये हम लोग इसके चिल्ड्रन को टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये तो आपको Yes. it will give you the that element directly. Okay, it will give you the article ना, right? But when you Yes. put the children property, तो सारे सारे चिल्ड्रन को दे रहा है, तो जब भी चिल्ड्रन कॉल करोगे तो यू विल गेट HTML कलेक्शन। और मैंने बताया था कि when you use document dot get element by class name, बताया था, रिमेम्बर? Yes sir, yes sir. हाँ सर, क्लास वो नोड नेम लिस्ट नहीं, क्लास नेम आपको HTML कलेक्शन देगा। नोड लिस्ट कौन देता है? क्वेरी सेलेक्टर ऑल देता है। ठीक है, यस क्वेरी सेलेक्टर ऑल विल गिव यू नोड लिस्ट। बाकी डॉट चिल्ड्रन आप कॉल करोगे तो यू विल गेट HTML कलेक्शन। और कोई एनी एलिमेंट सेलेक्टर भी आप यूज करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय एलिमेंट नेम, तो उस केस में भी यू विल गेट HTML कलेक्शन। ठीक है, बस क्वेरी सेलेक्टर ऑल के केस में यू विल गेट नोड लिस्ट। ओके, यस सर, थैंक यू सर। यहाँ पे यू विल गेट ओनली वन एलिमेंट, बट ये मैजिक कहाँ पे आ रहा है? चिल्ड्रन जब कॉल कर रहे हो तो आपको मल्टीपल एलिमेंट मिलेगा ना, क्योंकि आर्टिकल है सेवरल एलिमेंट, उस केस में HTML कलेक्शन देगा। अदरवाइज इट इज गिविंग यू सिंगल एलिमेंट विच इज आर्टिकल, राइट? आर्टिकल कंटेन सेवरल चिल्ड्रन, तो आप डॉट चिल्ड्रन उसमें कॉल कर सकते हो। गुड, तो पेरेंट टू पेरेंट मूव करना है। इफ यू वांट टू गो अपवर्ड तो डेफिनेटली यू कैन गो पेरेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये राइट करता हूं चिल्ड्रन डॉट पेरेंट, तो व्हाट यू विल गेट? ओके, या फिर चलो फर्स्ट चाइल्ड लेते हैं। ठीक है, यू कैन सी सेवरल मेथड। ठीक है, सारा कवर करना पॉसिबल नहीं, जस्ट प्ले विथ इट कि चिल्ड्रन को कॉल करने पे क्या क्या मिलता है आपको, लास्ट चाइल्ड कॉल कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट चाइल्ड कॉल कर रहे हो तो क्या मिल रहा है। यू गेट द आइडिया कि हाँ ऐसा कुछ होता है जिसको यूज करके हम चाइल्ड टू चाइल्ड, पेरेंट टू पेरेंट और सिबलिंग पे भी मूव कर सकते हैं। 3 केसेस, पेरेंट पे जाना तो यू कैन गो पेरेंट, चाइल्ड पे जाना तो चाइल्ड के लिए हमारे पास कई सारे, लास्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड और चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इसमें तो चिल्ड्रन क्या देगा? ऑल द चिल्ड्रंस, करेक्ट? यस सर। लास्ट चाइल्ड क्या देगा? उसके अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो देगा। फर्स्ट चाइल्ड क्या देगा? जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो देगा। तो इट मेक सेंस, जो डेफिनेशन यहाँ पे है, दीज आर रेडीमेड थिंग्स। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी में अवेलेबल है, इनको वी आर यूजिंग जस्ट टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है, तो गिव इट अ ट्राई। सारा कुछ कवर करेंगे तो विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। इवन देखो चाइल्ड नोट्स भी करके प्रॉपर्टी है, मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, बट देयर इज। ओके, सो आप लोग इसको ट्राई करो, हो सकता है आपके यूज केस में कहीं जरूरत पड़ जाए, तो डेफिनेटली यू हैव टू। एंड हैज चाइल्ड नोड, ये चेक करके ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देगा कि चाइल्ड नोड है या नहीं है। ठीक है, इवन यू कैन रिप्लेस द चाइल्ड, यू कैन डू सेवरल थिंग। ठीक है, तो जस्ट डू आई एम जस्ट गोइंग टू गेट लाइक फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड, और उसके बाद मैं पेरेंट एलिमेंट बोल रहा हूँ, तो व्हाट यू विल गेट? H1. आर्टिकल ही मिलना चाहिए। Okay, so आर्टिकल so let us move कि कैसे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, चलो फर्स्ट चाइल्ड पहले लेते हैं। let us do the first child. if I get the first child, what you will get? text, क्योंकि इसके पास कोई चाइल्ड ही नहीं है ना, राइट? दिस इज अ टेक्स्ट नोड, करेक्ट? यस हाँ, तो अगर यहाँ पे एलिमेंट होता तो आर्टिकल ही मिलता। ठीक है, सो अगर यहाँ पे आपको एलिमेंट रखते हो कोई, फॉर एग्जांपल डिव को ग्रैब करो, डिव हमारे पास नहीं है, तो उस केस में यू आर वेरी राइट। ठीक है, ऐसा नहीं कि यू आर इनकरेक्ट, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें चाइल्ड ही नहीं मिला तो मूव टू द पेरेंट आ रहे हैं, तो इधर ही से इस पे आके रुक जा रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग अपवर्ड दैट मच। अभी हमें यही मिल रहा होगा, राइट? वी आर गेटिंग दिस वन, द टेक्स्ट वन। तो अभी इधर आप पेरेंट करोगे ना तो H1 पे जाके रुक जाओगे। ठीक है, मैंने कहा चाइल्ड पे जाओ तो टेक्स्ट नोड पे गया, राइट? भाई टाइटल डॉट फर्स्ट चाइल्ड आपको क्या देगा? टेक्स्ट नोड, और एलिमेंट दोगे तो वो एलिमेंट दे देगा फर्स्ट चाइल्ड, बट अभी के लिए फर्स्ट चाइल्ड के केस में देयर इज ओनली टेक्स्ट नोड, और इसका पेरेंट कॉल करोगे तो वापस वहीं पे आ रहे हो ना, तो एक तरह से दीज आर कैंसलिंग ईच अदर, राइट?
कैंसिल ही तो कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग H1 अगेन। यस सर। तो आपको H1 क्यों मिल रहा है? बिकॉज दीज आर कैंसिलिंग ईच अदर, एक तरह से, मतलब चाइल्ड पे गए फिर पेरेंट पे वापस आ गए। तो चाइल्ड के केस में देयर इज ओनली टेक्स्ट नोड, ये ध्यान दें। अगर अदर एलिमेंट है तो यू विल गेट द सेम रिजल्ट, ऐसा नहीं कि चेंजेज होंगे, बट देयर इज टेक्स्ट नोड। अगर कुछ भी नहीं होगा देन देयर इज गोइंग टू बी रेफरेंस नॉट फाउंड इशू, ठीक है, तो वो चलेगा नहीं उस टाइम पे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ओके, तो पेरेंट एलिमेंट गिव यू पेरेंट, फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड गिव यू द चाइल्ड, चिल्ड्रन विल गिव यू ऑल द अवेलेबल आइटम्स। और पेरेंट पे मूव करना है तो पेरेंट 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 आप कॉल करते जा सकते हो। इवन सिबलिंग भी आप, मतलब पैरेलल, इनको हम सिबलिंग बोलते हैं, वी कॉल दोज एलिमेंट सिबलिंग, कि सिबलिंग ऑफ दिस एलिमेंट इज दिस दिस दिस, जहां पे नेस्टिंग नहीं हो। अभी आर्टिकल के सारे चाइल्ड है, करेक्ट, ठीक है, और बॉडी का आर्टिकल चाइल्ड है, करेक्ट, और बॉडी के ये सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है, करेक्ट। अब इधर ये सारे क्या है, ठीक है, ये सिबलिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि कोई नेस्टिंग नहीं है, ठीक है। इफ देयर इज नो नेस्टिंग, सिबलिंग, अदरवाइज पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होगा। तो दीज आर द सिबलिंग, और सिबलिंग पे भी सिबलिंग टू सिबलिंग मूव करना है, डेफिनेटली आप मूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सिबलिंग कॉल करने जा रहा हूँ। आई हैव ग्रैब्ड H1, और इधर टाइटल की जगह पे ना, टाइटल तो रहने देते हैं, बट यहाँ फर्स्ट चाइल्ड की जगह आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल नेक्स्ट सिबलिंग, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, तो इट विल गिव द एलिमेंट। ओके, अदरवाइज इट कुड बी एनीथिंग एल्स, एलिमेंट की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बट आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, की जो एलिमेंट है जस्ट गिव मी दैट। इट मेक सेंस, पैराग्राफ, राइट। ये ग्रैब किया है, उसका नेक्स्ट सिबलिंग कौन है? दिस वन, राइट। Yes, sir. यस सर। Okay, you can also call like previous sibling। तो चलो देखते हैं, देखो previous में कोई sibling है नहीं, right, ऑलरेडी टॉप है ना ये, तो previous element sibling is there, and if I save, इधर देखोगे null मिल रहा है। why it is null? because there is no previous sibling, parent है ना ये, तो there is no sibling, right, so we are getting null। Yes, sir. तो यू कैन मूव, देखो 3 केसेस आर देयर, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन इज देयर, तो पेरेंट चाइल्ड डेफिनेटली यू कैन मूव, सिबलिंग रिलेशन, तो सिबलिंग पे भी यू कैन इजीली मूव। और दीज आर द लेस कॉस्टलियर, लेस कॉस्टलियर का मतलब कि आपका रन टाइम जो है बेटर होता है व्हेन यू मूव थ्रू द डॉम। अब डॉम से ग्रैब करना इज चैलेंजिंग, ठीक है, वो बार बार आप ग्रैब करोगे टू मच एलिमेंट फ्रॉम डॉम ना, तो आपका एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को लिटिल बिट स्लोअर। ओके, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, वी फर्स्ट अवॉइड ग्रैबिंग द एलिमेंट फ्रॉम द डॉम, हमें उतना ही सेलेक्ट करना है जितने के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। वी मस्ट सेलेक्ट दोज एलिमेंट which is must needed to be selected, okay, otherwise don't select unnecessary element, it will increase the run time of your application, this is not a good thing। Okay, after grabbing the element, if you're moving with the previous element, sibling, children, first child, last child, something like that, then it is okay, ठीक है, these are the performance optimized thing, and that's why those things are there, and this is what we call the traversal of the DOM, when you grab an element and you can move through that element, upward in the DOM tree, downward in the DOM tree, and anywhere in the DOM tree, okay, this is what we call DOM traversal, and you can do that, it is very easy, and again it will also bring you that element, आपको element ही देगा है, ठीक है, and you will do all the operation, आप उसको inner HTML चेक करना है या कुछ whatever you want to do, definitely you can do। if उसमें कुछ children अपडेट करना है तो definitely you have append child method to add something as a child to that particular element। okay, तो सारा कुछ ऑपरेशन वही करना है, लेकिन सारा कुछ ग्रैब करने की बजाय जस्ट मूव थ्रू द DOM, that is very important। हेलो सर। यस सर अगर H1 के अंदर हम लोग स्पैन लेते हैं तो उसका चाइल्ड स्पैन हो जाएगा, तब वो टेक्स्ट नहीं लेगा ना? हाँ, तब वो ग्रैंड चाइल्ड टेक्स्ट जाएगा ना। ओके ओके ठीक है। हेलो सर। सर एक बार नोड लिस्ट एंड HTML एलिमेंट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो थोड़ा बता दीजिए। नोड लिस्ट और HTML एलिमेंट्स।
Okay, so HTML element again ये simple सा है. This is what we call HTML element. Okay, HTML element बोलते हैं tag with text और tag with data. What we call, इसको हम tag बोलेंगे. चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ. सर वो कलेक्शन HTML कलेक्शन था मे बी. हाँ, ओके, तो कलेक्शन और नोड लिस्ट में ना, चलो देखते हाँ हैं. ओके, तो लेट अस कम हियर और इधर ट्राई करते हैं ग्रैब करने का, हालांकि मैंने बताया बट फिर भी लेट अस सी. ओके, H1 हमने किया है और इसको लॉग करते हैं. नॉट अ बिग डील. इस केस में आपको देयर इज नथिंग ट्रिकी, बहुत ही इजी वे में आपको मिलने वाला है एक सिंपल सा एलिमेंट H1. इस टाइम पे देयर इज नो कलेक्शन, ठीक है. और यहाँ पे वी कैन गेट 3 टाइप्स ऑफ कलेक्शन. या तो आपको अरे कलेक्शन मिलेगा, मतलब अरे का बंडल मिलेगा, और यू विल गेट HTML कलेक्शन, और यू विल गेट नोड लिस्ट. ओके, सो जो HTML कलेक्शन है दैट इज काइंड ऑफ अरे बट नॉट विथ ऑल द पावर्स. यू कैन सी अभी फॉर ईच हमारे पास नहीं था उसके पास, तो हमने उसको बोला कि नहीं, लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट इट इन द अरे, देन वी कैन यूज फॉर ईच ओवर दैट. ठीक है, तो सारा फीचर नहीं होता है HTML कलेक्शन में. तो कौन से केस में HTML कलेक्शन मिलेगा? HTML कलेक्शन मिलता है जब आप अगेन क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करोगे तो यू विल गेट नोड लिस्ट. तो मैं इधर एक HTML कलेक्शन का भी केस दे देता हूँ और उसको भी दे देता हूँ. ठीक है, तो var and let us name it element equal to document dot get element by id. ठीक है, id के केस में यूनिक एलिमेंट होगा तो देयर इज नथिंग लाइक कलेक्शन. ओके, मतलब बंडल नहीं मिलेगा, तो id इज नॉट अ गुड चॉइस अगर हमें कलेक्शन पे डिस्कस करना है तो. तो लेट अस गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम. ठीक है, क्लास नेम पे हमें मिलेगा क्योंकि क्लासेस कैन बी मल्टीपल, वन क्लास कैन हैव मल्टीपल एलिमेंट्स. ओके, सो इधर भी क्लास देते हैं लाइक वन, और सेम क्लास को हम लोग कई सारे एलिमेंट को स्पेसिफाई कर सकते हैं. तो इस पैराग्राफ को भी मैंने क्लास स्पेसिफाई किया और इस पैराग्राफ को भी मैंने सेम क्लास स्पेसिफाई किया, इस div को भी सेम क्लास. तो वी हैव 4 एलिमेंट विद क्लास 1. ठीक है, अब इसको यूज करके वी कैन टारगेट कि हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए. तो डेफिनेटली गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इधर हमें क्लास नेम 1 स्पेसिफाई करना है. पे अटेंशन, इधर डॉट 1 नहीं स्पेसिफाई कर रहा हूं बिकॉज दिस मेथड ऑलरेडी डिजाइन फॉर द क्लासेस. ओके, अगर क्वेरी सेलेक्टर होता तब तो हमें डॉट लगा के सेंड करना होता. गुड, तो लेट अस सेव और इसको एलिमेंट को लॉक करते हैं. तो लेट अस लॉग द एलिमेंट टू element, and if I save it, you can see you are getting HTML collection. Okay, so whenever you are using like class name, so there is chances you can get multiple element. तो class name के साथ आपको HTML collection मिलेगा. और HTML collection को भी हमने देखा array डॉट फ्रॉम करके आप इसको array में कन्वर्ट करके you can use the for each. अभी इसमें for each नहीं चलेगा. हाँ, इंडेक्स के बेसिस पे you can access it. अगर आपको ये एलिमेंट चाहिए तो you can pass the index 1 and you will get that particular element. So indexes will work but for each will not. ठीक है, because these are the limited feature array. You can say अब एक केस और है, आप एलिमेंट मतलब इसके नेम के बेसिस पे, जैसे सारे के सारे पी एलिमेंट है, चलो इसके नेम के बेसिस पे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो. तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एलिमेंट नेम. ओके, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव. तो ये हमारे पास एक है HTML कलेक्शन ले आने का. एक और हमारे पास है जिसमें आपको HTML कलेक्शन मिलेगा. तो गेट एलिमेंट बाय लाइक टैग नेम. ओके, एंड इसमें आपने सपोज हमने p पास किया तो सारा पैराग्राफ आपको दे देगा ये. एंड इफ आई सेव एंड लॉग इट अगेन, आपको देख सकते हो कि HTML कलेक्शन यू आर गेटिंग, क्योंकि 6 एलिमेंट है जिसके पास जो p है, मतलब p एलिमेंट है. तो HTML कलेक्शन टैग नेम के बेसिस पे, क्लास नेम के बेसिस पे यू विल गेट. ओके, नोड लिस्ट भी आप गेट कर सकते हो, और अगेन इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो array डॉट फ्रॉम से array में, सिंपल. और इवन नोड लिस्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो, नॉट अ बिग डील. सो बट लेट अस सी कि कौन सी केस में हमें नोड लिस्ट भी मिल सकता है. तो नोड लिस्ट के लिए हम लोग चलो क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करते हैं उसके लिए, एंड a विथ अपर केस. दीज आर द फिक्स मेथड. ठीक है, और फिर से मैं p, देखो सेम p को सेलेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इधर टैग नेम से मैंने यूज किया है, आई एम सेलेक्टिंग p, और इधर से मैंने क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज किया है और इसको p पास करें, क्योंकि यहाँ पे वैलिड CSS सेलेक्टर में पास कर रहा हूँ. तो p इज आल्सो वैलिड CSS सेलेक्टर. ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट का नेम मैं पास करता हूँ. ठीक है, दोनों अभी सिमिलर है बट दोनों में डिफरेंसेस हैं. ग्रेट, तो चलो लॉक करते हैं और यू विल सी कि आपको सेम रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, विथ डिफरेंट कलेक्शन नेम. सेव करते हैं
एक केस में आप देखोगे HTML कलेक्शन मिल रहा है, करेक्ट? कौन से केस में? व्हेन यू आर यूजिंग गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है। और एक केस में यू आर गेटिंग द नोड लिस्ट। तो जब क्वेरी सिलेक्टर ऑल आप यूज करोगे, ऑल मतलब गिव मी ऑल द एलिमेंट, और क्वेरी सिलेक्टर आप यूज करते हो तो यू विल गेट वन एंड ओनली वन एलिमेंट, द फर्स्ट अकरेंस। ओके, तो क्वेरी सिलेक्टर के केस में आपको वन एलिमेंट ओनली पी एक मिलेगा, फर्स्ट वाला पी मिलता है ओनली। यू कैन सी यू आर गेटिंग दिस पी, और वो ये वाला पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पी, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर will return the first occurrence of that particular element, और अगर मैं all यूज करूंगा तो it will return all occurrences in the form of node list, ठीक है। और HTML collection node list दोनों को array.from से आप arrays में कन्वर्ट कर सकते हो। हालांकि node list always have for each इसके पास होता है, you can use for each over it without it converting in the array list, okay, but HTML collection के पास नहीं होता है, but still some features are also lacking, okay, इधर अभी लैक करेगा, सारे array के features इसमें available नहीं है, हाँ, but array की तरह है, you can use indexes and all the things, okay। तो सर बेटर कौन सा है अगर जो P एलिमेंट यूज है? ऑलवेज क्वेरी सेलेक्टर, ये आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको CSS सेलेक्टर बस पास करना होगा, ठीक है, तो यू कैन इजीली गेट द, ठीक है। तो क्वेरी सेलेक्टर आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करेगा, बाकी दोनों का रन टाइम सेम है, ठीक है। तो रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा जो लाइन नंबर 64 है उसकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट डॉम से पिक करता है, ये पहले CSS के बेसिस पे सर्च करेगा देन पिक करेगा, ठीक है। तो परफॉर्मेंस वाइज लाइन नंबर 64 वे HTML कलेक्शन वे इज लिटिल बिट बेटर, बट अभी के लिए बोथ यू कैन एज्यूम सेम, क्योंकि डॉम से एलिमेंट बार बार ग्रैब करना इज वेरी वेरी हैवी टास्क, ठीक है। तो जस्ट अवॉइड इट, अगर नेसेसरी है देन ट्राई टू ग्रैब इट, और उसके बाद वो ट्राइवर्सल यूज करो, चाइल्ड, पेरेंट एंड ऑल द थिंग्स, ओके। सो क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स, उसमें आपको ओनली CSS सेलेक्टर पास करना होगा, गुड। ओके, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट इवेंट्स, ओके। अभी हमारे पास काम भर के वी हैव सीन कि कैसे डॉम मैनिपुलेट कर सकते हैं, डॉम ट्री से ग्रैब करना एलिमेंट एंड हाउ टू वर्क विद द होल एलिमेंट काइंड ऑफ थिंग। और हमने बहुत इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑब्जेक्ट को टेम्पलेट में कन्वर्ट करके इंजेक्ट किया है, और अगेन वी विल डू इट मच मोर इफिशिएंट वे। अभी हमने मेथड्स वगैरह नहीं यूज किए हैं, बट आपके पास बहुत सारे जैसे अरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिलेगा टेक्निकली, ठीक है। तो उस केस में वी विल सी कि कैसे उसके साथ डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर अरे मेथड्स, ठीक है। अरे के और मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस देम, ऐसे वन बाय वन करेंगे तो इट बिकम मच मोर इजियर। सारा एक साथ करेंगे तो फिर चैलेंजिंग हो जाएगा, ओके। बट लेट अस नाउ टॉक अबाउट द इवेंट, ठीक है। इवेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हम लोग कुछ इवेंट ड्रिवन नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोड राइट कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ब्राउजर लोड हो रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है। जो कोड whatever script we are writing, the whole script is executing and we are getting our expected result. This is not good thing, ठीक है। For example, you are creating an e-commerce application, or without clicking on add to cart button, product is already getting added in your cart. This is not good thing, okay. This is what you call event driven programming. Now it's time to talk about the events, okay. And again, we don't create event, we show our interest in the events, because events are ongoing always, ठीक है। ब्राउजर का ये साइज है, that is also event. If I resize, this is also event, but we are not interested in that for now. अगर मुझे इंटरेस्ट है कि हाँ इस इवेंट में मुझे क्या इंप्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली आई कैन डू दैट, ठीक है। अगर मैं ब्राउजर पे इधर कहीं क्लिक कर रहा हूँ तो दिस इज ऑल्सो इवेंट, ठीक है, आई एम क्लिकिंग ऑन दैट, ठीक है। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि अभी यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। अगर मुझे इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली हम लोग उस पर कुछ लॉजिक बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इवेंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल थिंग, एंड इवेंट्स आर हैपनिंग ऑल द टाइम। जब आप बटन प्रेस करते हो कीबोर्ड का, दैट इज ऑल्सो इवेंट। माउस को इधर मूव कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इवेंट, ठीक है। बट अभी हम इंटरेस्टेड नहीं है कि माउस को मूव करने के बाद क्या होना चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि व्हेन यू मूव द माउस ओवर इट, इसका कलर भी चेंज होता है या फिर कुछ इसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। वो सारा का सारा जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल है, ओके। आप इस पे भी माउस ले आओगे ना, कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगेन उसको हॉवर हम CSS में ऑलरेडी वी नो, बट जावास्क्रिप्ट में यू कैन डू मच मोर देन दैट,
ओके आप इस पे हॉवर करोगे या डिलीट करना चाहते हो, यू कैन डिलीट इट। ओके सो यू कैन डू सेवरल थिंग, ठीक है, और हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स ऑन गोइंग, ठीक है। अभी ब्राउजर का ये जो स्टेट है ना, दैट इज आल्सो इवेंट, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है करना क्या है, ठीक है। तो हो रहा है, दैट्स इट, होने दो, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी डोंट शो आवर इंटरेस्ट इन दैट इवेंट, ठीक है। बट वी विल सी कि अगर यूजर इधर कोई बटन हम क्रिएट करेंगे, इस पे कोई क्लिक करेगा, देन वी विल बी इंटरेस्टेड इन दैट इवेंट कि अच्छा जब यूजर इस बटन पे क्लिक करे, देन वी वांट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन, ठीक है। तो इवेंट्स आर ऑलवेज गोइंग ऑन। और कौन कौन सी इवेंट होती है, हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स है। कुछ इवेंट्स को वी विल लर्न, मोस्ट कॉमन वंस, जैसे फॉर्म इवेंट होता है, देयर आर सेवरल थिंग्स, ठीक है। तो वी विल डू, फॉर एग्जांपल यू आर क्लिकिंग इट आल्सो इवेंट, मूविंग द माउस आल्सो इवेंट, प्रेसिंग अ कीबोर्ड बटन, और कीबोर्ड बटन प्रेस करने में देयर आर 10 काइंड ऑफ इवेंट, फॉर एग्जांपल की प्रेस, की अप, की डाउन, these are the 3 event, mouse hover, mouse leave, mouse on, mouse out, hundreds of events are ongoing। अभी उसमें से we will learn कुछ, some events we will learn, and today we will try to bind सब event, कि चलो कुछ event पे हम interest show करते हैं कि नहीं नहीं ये वाला event होगा ना तो मुझे ये काम करना है, ठीक है, I'm interested in that, very important thing, ठीक है। तो let us talk about little bit event binding। ओके तो एक बटन क्लिक करते हैं और कुछ टू डू टाइप का कुछ क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। मान लो क्लिक करोगे, कुछ एलिमेंट डिलीट हो, समथिंग लाइक थोड़ा फन एंड गुड वंस। ओके सो चलो इधर मैं एक पहले HTML, लेट अस गो विथ टू डूज and let us create like an ordered list, और इसमें कुछ एलाइज लगाते हैं, you know, simple thing। और एलाइज में like some list I'm just going to create, for example buy milk। पहले एलाइज को हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं 2-3 टाइम्स, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट करते हैं like buy milk, and what we can do like read a good book, what we can do dance, or pay the bills। Okay, so these are the some like list what we want to do। okay, save करते हैं and good, so we have created simple list, and this is the blank because we don't have those things। I'm just going to comment them for now and just moving them up। okay, so now let us talk about इवेंट बाइंडिंग। तो इधर हम एक बटन भी क्रिएट करते हैं। अभी तक हम बटन क्रिएट करना जानते थे, बट नाउ इट्स टाइम टू bind some event on that, so that we can, whenever we perform some kind of event, so we can do some logical things। okay, so let us do the button here, and I'm just going to do click me। okay, save, nothing will happen, button is there, I'm clicking it, nothing is happening, everything is fine, HTML wise everything is okay। now it's time to do some event kind of thing। okay, so as I told you, events are always going on। for example, I'm clicking on that button, this event is happening। okay, this event is triggering, what we call the technically, this event is getting triggered, but we are not showing our interest in that event कि अच्छा क्लिक कर रहे हो, ठीक है क्लिक इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। बट अभी जो मैंने बटन क्रिएट किया उसमें तो मुझे इंटरेस्ट दिखाना, इधर क्लिक करने पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्टिल द क्लिक इवेंट इज हैपनिंग, आई एम क्लिकिंग हियर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दोज इवेंट, दोज इवेंट्स आर हैपनिंग, नॉट अ बिग डील। okay, but I'm interested in this event कि when a user click on that button, I want to show my interest in that, yes, click event is happened on this particular button, now I'm interested। ठीक है, तो कैसे वो इंटरेस्ट शो करना है, so उसके लिए we will use event binding। ठीक है, इस बटन पे we want to bind the event, this is very very important। okay, so binding the event means what, we are showing our interest in that particular
event, right? Either click करोगे तो I am now interested, so let us bind the event with that button, but not here, ठीक है? इधर हम लोग event नहीं bind करें, इधर click करो, I don't care, click event is happening but not interested. But इस पे click करने में we want to show our interest, and to show our interest we must bind the event with the element. Okay, so let us do that. So first we need to grab it. Again, DOM process is also here, exactly same here. Okay, so let us try to grab the button. I'm just going to use query selector. So first step is grab it. Var button equals document dot query selector I'm using. You can use whatever you want, ID selector, element selector, button. Okay, good. And I have selected the button. Let us check. We are right or wrong. Save. And yes, we are getting the button. Perfect. Okay, so we are getting the button. Now it's time to bind some event in it. Okay, and to bind a event, we use a ready-made method that is available with all the element. जितने भी element है हमारे पास HTML में, सबके साथ that method is available in a ready-made format. ठीक है, वो JavaScript library में वो आपको written form में मिलेगा, बस हमें यूज करना है कि मैं अब बटन को मैंने ग्रैब किया है, आई एम इंटरेस्टेड इन क्लिक इवेंट की, जब इस पे कोई क्लिक करेगा देन आई वांट टू डू समथिंग. ओके, तो कैसे करना है, आप बटन को सेलेक्ट करोगे, बटन ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है बट बटन इधर यूज करोगे और इसके आगे डॉट लगाओगे, एंड यू कैन सी कि इट इज अगेन ऑब्जेक्ट एंड इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर इवेंट बाइंडिंग, व्हाट वी कॉल ऐड इवेंट लिसनर. ओके, सो ये रेडीमेड, मतलब इसका वर्क यही है कि इस बटन से कोई इवेंट बाइंड कर दो, वट एवर इवेंट यू वांट टू बाइंड, यू कैन बाइंड ऑल इवेंट. ठीक है, बट अभी हम लोग क्लिक में इंटरेस्टेड है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू बाइंड द क्लिक इवेंट. सो रिमेंबर दैट मेथड. ओके, add event listener means we are getting ready to listen for that event. What event we are going to specify, what event we are interested on. So this method is very very handy method to bind the event. So what we method event we are interested on, click the event. You can see thousands of events are listed there. You can see these are the events. Okay, and we will not learn all of them, but we will learn the most important ones that you will be using on daily basis. Okay, so अभी हम उसमें से कुछ important को नहीं, कुछ important को cover करते हैं, but we will learn most of the important ones only, not all the, but I'm interested in click. Okay, so I'm just going to specify click. Now I binded the event. ठीक है, अभी मैंने बटन पे add event listener को यूज करके मैंने एक इवेंट बाइंड कर दिया, सिंपल. अब मैं क्लिक के लिए रेडी, अदर इवेंट पे नहीं, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर इवेंट्स आर आल्सो गोइंग. फॉर एग्जांपल आप इसमें माउस ले आ रहे हो, दैट इज आल्सो इवेंट, बट उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं. आई एम इंटरेस्टेड इन क्लिक इवेंट कि जब इस पे कोई क्लिक करेगा देन व्हाट यू वांट टू डू. नाउ इट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द इवेंट लिसनर. we are ready कि हाँ, if some people will click on their button, so we are ready till that point. But what is going to be happen after clicking that, we haven't created that part yet. Okay, so that is what we call the second parameter of the add event listener. So comma लगा के आपको इधर एक function पास करना होता है, क्योंकि function implements a logic. ठीक है, तो आप यहाँ पे सिंपल एक एनोनिमस फंक्शन, क्योंकि क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक वो कॉल हो जाएगा, तो यू डोंट नीड टू प्रोवाइड अ नेम फॉर दैट फंक्शन. ओके, जस्ट सिंपली प्रोवाइड अ anonymous function. Anonymous function means function without a name, or it is also, you can see it's a callback function. Okay, callback function for the add event listener method. Simple. So now everyone is happy. Grab the element, use add event listener, specify what event you are looking for, click event in that case, and after clicking on that, only clicking, nothing more than that. Okay, what we are going to do, we are going to execute that function. Okay, so whatever logic you want to write, you can write it. So let us just log it, you clicked on me. We will but write lots of logic here. Okay, कि click करने के बाद होना क्या चाहिए, we will do all the things, but for now I'm just going to specify you clicked me, or you clicked the button.
Perfect. So let us see whether it is working or not. We have successfully binded the event or not. तो मैं इसको हटाता हूँ. I don't need this log. अभी सिंपल था. Round tree से एलिमेंट ग्रैब किया, उस पे ऐड इवेंट लिस्नर लगा के क्लिक इवेंट के लिए वी आर वेटिंग, और जैसे कोई क्लिक करेगा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा. सिंपल. Okay, so let us save it and let us come here. इधर क्लिक करूंगा nothing will happen, but pay attention. जब मैं बटन पे आके क्लिक कर रहा हूँ, yes, we are successfully binding the event. अब देखो जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार ट्रिगर हो रहा है. I'm clicking on consistently. Okay, you can see I have clicked 41 times and the whole body is executing like 41 times. Totally fine. Okay, so again hover is not, hover is also event. ठीक है, when I'm putting my mouse over the button, that is also event, but उसमें हम interested नहीं थे, तो हमने इधर only click में interested है कि जब इस पे कोई click करेगा then do that. अदर इवेंट में अगर इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आप इधर पे, अभी वी विल लर्न सेवरल इवेंट, यहाँ पे वन बाय वन करके हम लोग लर्न करेंगे और सबके यूज केसेस वी विल सी. ओके, गुड. डाउट्स? फाइंड कर लोगे आप लोग इवेंट, ग्रैब इट, just use add event listener, event specify करो, function specify करो, that's it, you done this. चलो तो कुछ फिर से let us try to bind event over the LIs. कुछ आइटम्स पे बाइंड करते हैं या LI को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और सब पे इवेंट बाइंड करते हैं एट सिंगल को. यू कैन सी कि अब हम सारे के सारे वो फीचर यूज करने वाले हैं, ठीक है, जो अभी तक हम लोग लर्न कर रहे थे. आई एम जस्ट गोइंग टू कमेंट इट हियर. और अब मैं LI को ग्रैब करने में इंटरेस्टेड हूँ. लेट अस डू द var item equal document dot query selector all. Again we will get a node list, but node list में for each चलता है, so we don't need to convert it in the array. Totally fine. So I'm just going to provide li and I'm selecting all the LIs. Okay, I'm not going to log it because I'm getting you will see I kind of assuming you know what will happen. It will grab all the LIs, right, in the form of node list, right? Yes. Okay, so you will get a node list. Now it's time to loop over it. So let us do that, and you can see applied part is very easy. And add event listener we are interested in because these are the items. Oh no, so I'm just going to loop over it. Okay, so because these are the node, it's a collection of, okay, so it's a collection of, it's a node list. So it don't have like add event listener, you cannot add event here. Okay, because it's a bundle, na, you need a specific element to add a add event listener. Okay, but it is a collection of node list, it don't have add event listener. I'm just going to use for each. You can see for each, but not all array related methods are available. Pay attention because it is also limited feature array kind of thing. Okay, arrays have several other powers too, but node list also don't have, but node list at least have for each, that is that we can use. Okay, so again for each simple way, I'm just going to specify a function here. Again, arrow function we don't know, but it's a good idea to provide arrow function here. So I will let you know what are arrow function in the next class, but abhi ke liye let us go the older way. Okay, I used arrow function, that is not okay. So for each, and it's a simple body, everyone is happy. So as you know, इसमें आपको एक li आएगा, right? You will get item और इधर आप item को के साथ जो भी whatever you want to do, but अभी मैं सब पे event bind करने में interested हूँ. You can see कि कितना powerful ये है. Looping over it and every item I will get, na, right? These are the items, yes. Na? LIs. So now we have add event listener here because these are the element, correct? From the collection. So I'm just going to add event, put add event listener, and I'm interested in again click for now, but there are several other things, and I'm just going to provide a function here, anonymous function. I don't need to provide a name, it will called automatically, so name is not required, even you don't need to specify. And let us just
put like console.log for now, but we will delete it. ठीक है, अभी देखेंगे हम एक to do application create कर लेंगे, simple thing है, ठीक, it's not very challenging. Okay, so we can log the message कि item clicked. Perfect, good. So let us save it, and now let us test it. ठीक है, as you know कि every element, every li now has an event, right? सब पे event bind किया है ना, click. So they will look for the click. hover पे हम लोग नहीं, ठीक है, देखो hover कर रहे हैं, nothing is mouse over, nothing happening, but click में interested है, ठीक है, तो I'm just going to click on that. Yes, item clicked. इस पे भी click करेंगे, item clicked. इस पे भी click करेंगे 3 times, you can see item clicked. और इस पे भी click करोगे, item clicked, but इस पे करोगे nothing will happen. Why? Because we removed that event listing, right? But अभी we will bind it again. So you can see कि कैसे loop को use करके you can bind event on each and every element. Okay, but you can do other things too. And one very important concept I just want to explain, and this is again the core to the JavaScript. Pay attention. So everything is working fine till now. Okay, so you can see मैं इस पे click कर रहा हूँ. Just let me begin it. Okay, इस पे click कर रहा हूँ. Item clicked, good. Item clicked, good. So event is at least working. We have bind event all over the LIs. Okay, but I want to identify कि which LI has been clicked. अभी यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना, right? Is there any way? अभी इधर मैं अगर चेक करना चाहूँ तो I don't have any idea कि which LI is getting clicked. Correct? Yes, sir. We don't have any idea about it. Now it's time to figure that out, and this is very important step, and you will use it in interview as well as implementation. I cannot explain how important it is. Okay, so pay attention. When you perform an event, okay, when you perform an event, जैसे आप इस पे click कर रहे हो, this is the event. Okay, automatically you are creating an event object. Pay attention. When you are clicking means when you are performing an event, you are creating a event object. अब कहोगे कि मिलेगा कहाँ पे, वो क्रिएट कर रहे हो तो वो मिलेगा आपके इस वाले कॉल बैक के अंदर एज ए आर्गुमेंट और पैरामीटर. ठीक है, एंड दिस इज ऑटोमेटिक. ये मैं नहीं कर रहा हूं. व्हेन यू परफॉर्म अ इवेंट you will get a huge event object as a parameter of that callback function of the add event listener. Event listener का जो callback function है ना, वो blank है यहाँ पे, but it is you can use it for handling the event or receiving the event object. Automatic इसी में पास होगा, ये मैं नहीं करूंगा. देखिए, pay attention, this is very important. ठीक है, when you are performing an event, you will get a big event object, whatever name you want to provide, but it is going to be the event object. Okay, चलो उसको लॉक करते हैं. ठीक है, as I told you, मैं इसको भी सेव करता हूँ. nothing, क्लिक कर रहे हैं. event object is getting created, but we don't know कि where it is. now we know कि where we can get it. automatic जब भी आप event perform करते हो, you will get a big event object as a parameter of this particular फंक्शन. तो इसको वट एवर नेम, कुछ लोग इवेंट बोलते हैं, इसको कुछ लोग ई बोलते हैं. आई एम जस्ट गोइंग टू गो विथ ई फॉर इवेंट. स्वीट एंड सिंपल. ओके, एंड नाउ लेट अस लॉग द ई, क्योंकि हमने ई को अब ग्रैब कर लिया एंड इट हैपेंस ऑटोमेटिकली. ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट इवेंट उसको बोलते हैं. इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली व्हेन यू परफॉर्म द इवेंट. चलो फिर से क्लिक करके ट्राई करते हैं कि ये इवेंट में हमें मिलता क्या क्या है. ठीक है, इफ आई एम करेक्ट देन डेफिनेटली वी विल एक्सेस दैट big event object. Let us save it. and चलो कहीं पे भी क्लिक करते हैं, क्योंकि कहीं पे भी क्लिक करोगे e will get generated, क्योंकि सारे पे इवेंट हमने बाइंड ही कर रखा है. तो चलो इसी पे क्लिक कर लेते हैं. एंड आइटम क्लिक्ड, टोटली फाइन. ये तो फर्स्ट वाला लॉग है, लाइन नंबर 80. बट लाइन नंबर 81 यू कैन सी कि दिस इज अ पॉइंटर इवेंट. ठीक है, पे अटेंशन. और इसको ओपन करते हैं. यू विल सी ह्यूज इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. Okay, so let us open it, and you can see there are several event object के साथ there are several information you are getting. Okay, good. But you can also see a property here. What is
It is a target property. Correct? So I can get E dot target. Agreed or not? E dot target करने के बाद मुझे ये मिलेगा ना? Yes sir. क्योंकि भाई वही ई ऑब्जेक्ट है, दिस इज द बिग वन ना, तो चलो ई डॉट टारगेट करते हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी कितना बेटर साइकिल है। अब मैं फिगर आउट करने के चक्कर में हूँ कि भाई कौन से आई पे एल आई पे क्लिक किया है मैंने, ठीक है, तो ये वाला आपको स्पेसिफाई करेगा, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू गेट अ टारगेट आउट ऑफ इट, ठीक है। अब फिर से क्लिक करते हैं, लेट अस सेव इट, और अब इधर आते हैं, देखो अब मैजिक देखो, क्लिक किया आपको एल आई मिला, गुड, बट अगेन आप देखो बाई मिल्क वाला मिल रहा है, करेक्ट। नाउ इट इज मेकिंग सेंस टू मी कि जब अब ये आपको क्या देगा, ई डॉट टारगेट, कि कौन से एलिमेंट पे इवेंट हुआ है, ठीक है, ऑन विच एलिमेंट इवेंट हैज बीन डन और ट्रिगर्ड, ओके। इधर क्लिक करोगे, यू कैन सी कि ये आइटम क्लिक दो आ रहा है, साथ के साथ पे अटेंशन, यू आर गेटिंग गुड रीडर, गुड बुक। फोर्थ पे क्लिक करोगे, यू कैन सी यू आर गेटिंग पे बिल्स। मेकिंग सेंस कि हाउ इज यूजफुल ई डॉट टारगेट इज, वो आपको क्या देता है, इवेंट कौन से एलिमेंट पे हुआ है, ठीक है। टारगेट विल स्पेसिफाई द टारगेट ऑफ द इवेंट कि वेयर इट हैज बीन डन और परफॉर्म्ड, क्लिक किस पे हुआ। अभी क्लिक में इंटरेस्टेड, बट सबके लिए आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओनली नॉट फॉर द क्लिक, फॉर एनी इवेंट यू विल गेट अ ई ऑब्जेक्ट एज अ आर्गुमेंट ऑफ द ऐड इवेंट लिस्नर कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। उसमें आपको ई मिलेगा, उसको इवेंट देना, ई ए बी सी जो आपको नेम देना है, यूजुअली लोग इवेंट या ई वो यूज करते हैं, एंड इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली, मैंने नहीं क्रिएट किया, दिस हैपेंस। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द टारगेट ऑफ द इवेंट, कि इवेंट हुआ कहाँ पे है, ओके। तो अब मुझे डिलीट परफॉर्म करना था, ठीक है। अभी इधर ब्लाइंडली मैं क्लिक करता तो सारे रिमूव हो जाते, नाउ वी काइंड ऑफ हैव समथिंग कि कौन सा एलिमेंट एलिमेंट मिल रहा है अब हमें ना, राइट। Yes we sir. are getting the element. Now we can do some logical thing here कि whatever you want to apply, like you want to change the styling, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने डन कर लिया टास्क, ठीक है, तो इसके बाद वी विल स्टॉप। सपोज आपके पास टारगेट डन, तो यू नो कि दिस इज अ एलिमेंट, राइट। मैं इसको रिमूव करता हूँ, ये तो लॉग मैंने बस टेस्टिंग के लिए किया था। तो एज वी नो कि वी विल गेट द टारगेट, ठीक है, और इस लॉग को भी मैं यहीं पे कमेंट करता हूँ क्योंकि मुझे कुछ लॉजिकल इंप्लीमेंट करना है। तो आई नो कि आफ्टर क्लिकिंग ऑन ई डॉट टारगेट वी विल गेट द टारगेट, परफेक्ट। बट इस पे मान लो टारगेट मतलब कौन से प्लेस पे या कौन से एल आई पे इवेंट हुआ है, इट विल फिगर इट आउट कि एल आई 1 2 3 4 जिस पे भी हुआ है, तो वी विल गेट द टारगेट। और मैं इंटरेस्टेड हूँ, एज यू नो कि ये स्टिल इट इज गिविंग द एलिमेंट, आपको एल आई दे रहा है, तो आप क्या करोगे, डॉट स्टाइल आप यूज कर सकते हो यहाँ पे टू चेंज द स्टाइलिंग, एंड डॉट टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग कर लेते हैं अभी के लिए, टैब कलर रेड, वॉट एवर यू वांट टू डू। और अगेन इट्स हाइफनेटेड, तो यूजुअली हम सीएसएस में ये वाला यूज करते हैं, बट इधर आपको हाइफन हटा के डी अपर केस करना होगा। टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको हम लोग लाइन थ्रू, एज वी नो हमारे पास था ना एक, है ना। Yes sir. लाइन थ्रू कर सकते हैं, परफेक्ट, ओके। अब नाउ सी द मैजिक, तो यहाँ पे भी हमें लॉग में कुछ नहीं मिलेगा, बट यू कैन सी कि सपोज यू हैव डन विद द मिल्क बाइंग, क्लिक करोगे देखो लाइन थ्रू हो रहा है, राइट। सपोज यू हैव डन द डांसिंग, लाइन थ्रू हो रहा है, करेक्ट। यू हैव डन लाइक रीडिंग अ गुड बुक, लाइन थ्रू हो रहा है। अगर ये वाला नहीं होता ई डॉट टारगेट ना, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि इवेंट हो कर रहा है, तो फिर ये नहीं सेट कर पाते, करेक्ट। सर Okay, so this is very very important. Event object is very big object. It creates automatically, created by the browser itself when a event happen, ठीक है। जैसे क्लिक में हम इंटरेस्टेड है, बट और सारे केसेस में अननेसेसरी नहीं क्रिएट होगा, जब वो इवेंट होता है इंटरेस्ट शो करते हैं, देन वी विल गेट द ई ऑब्जेक्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
So just do it, just to give it a try. So we have implemented kind of to-do list, right? है नहीं? Simple to-do list, clicking on it Sure. and happening it, clicking सर इसमें done. दोबारा क्लिक करें तो ये हटेगा कैसे? दोबारा क्लिक करने पे हट जाएगा या हाँ, इसके तो लिए अलग से? नहीं अभी नहीं हटेगा ना, वो तो सेम इवेंट होगी ना, उसके लिए we will do the other trick, ठीक है? अभी उसको देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। सेम चैलेंज रहेगा हमारे पास, ठीक है? जैसे सेलेक्ट डिसेलेक्ट करने वाला, तो उसको we चेक will बॉक्स do. से सर कर दें, चेक बॉक्स। हाँ, चेक बॉक्स करेंगे ना, इट्स टोटली अच्छा, ठीक है। ओके ओके। ओके, चेक बॉक्स करने की जरूरत नहीं है, यू कैन अनसेलेक्ट एंड सेलेक्ट, बोथ यू कैन डू। तो अभी देयर आर सम लिमिटेशन इन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन, है तो बहुत ही बेसिक्स है, क्लिक करने के बाद बस लाइन थ्रू हो रहा है। बट आज काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम लोगों ने कवर किया। वी हैव कवर्ड लाइक इवेंट बाइंडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, और साथ के साथ DOM ट्रैवर्सल, बोथ थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इवेंट बाइंडिंग इज नॉट एंड, इट्स जस्ट स्टार्टेड, सो वी विल डिग डीपर कि अभी देयर इज सम लैकिंग, ठीक है? इसी एप्लीकेशन, इसी यूज केस को हम लोग आगे लेके चलेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि अच्छा दिस इज द प्रॉब्लम, हाउ वी कैन सॉल्व इट। ओके, so next class में we will continue from here. Any doubt till now? सर एक डाउट है। हेलो। हाँ, yes please. हाँ सर, जैसे कि आपने पहले जो एक for each फंक्शन आपने for each लूप जो आपने यूज किया है, तो उधर हमने, सर ये स्क्रीन थोड़ा सा हटा दीजिएगा, मतलब कॉम का जो है वो, कौन सी स्क्रीन? क्रोम का जो है वो हटा दीजिए। ठीक, मतलब कौन सा क्रोम का? मैं बोल रहा हूँ कि राइट साइड में जो आपके स्क्रीन में जो ये करना है। ओके, डू यू वांट टू प्रेजेंट स्क्रीन? आपको करना है क्या प्रांजल? आपकी आवाज तो नहीं आ सर रही मेरा है। नेटवर्क चला गया था, तो इसीलिए मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया था आपका। सर ओके, मैं ठीक। पूछ रहा था कि जो फोरिस में आप फोरिस जब आप यूज कर रहे थे और आइटम में हर एक लिस्ट को एक के बाद एक ऐसे लेके आ रहे थे, तो जैसे कि हम पहले जब करते थे, फर्स्ट लिस्ट जब स्टार्टिंग में आया, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट आया आइटम के थ्रू, आइटम पैरामीटर के थ्रू, LI आया। एल आई आया, तो एल आई में हम कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आइटम डॉट एड इवेंट लिस्टनर वो लगा रहे हैं। हाँ, आइटम एलिमेंट पे, ठीक है। हाँ, तो सर लेकिन ये फंक्शन कैसे रहा कि एक के बाद एक आ रहा है, और लेकिन हम जब क्लिक कर रहे हैं तभी कोई भी चल रहा है, तो ऐसे ये हो कैसे रहा है? हाँ देखो, फॉर ईच क्या करेगा, इट विल गिव यू आइटम 1 by 1 ना। अभी इसका क्या है, लॉजिकल क्या है, चलो चेक करते हैं इसको। देखो, लॉक करके चेक करते हैं ना, इट विल मेक मच मोर सेंस। अभी हम लोग इसको ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल console.log, तो यू विल गेट लाइक नोड लिस्ट। एग्रीड? हाँ, नोड लिस्ट आएगा, आई गेस नोड लिस्ट, इसमें 4 एलाइज हैं, वी नो कि हाँ ये 4 एलाइज होने वाले हैं। गुड, हमने क्या कहा कि चलो इसके ऊपर लूप थ्रू करते हैं। आई नीड एवरी इंडिविजुअल एलाई टू वर्क विद, क्योंकि मुझे इस पे इवेंट बाइंड करना है, सारे एलाइज पे, यूएल पे नहीं बाइंड करना है, ठीक है? तो वी हैव ग्रैब्ड द एलाइज, तो वी हैव टू टेक एलाइज आउट ऑफ दिस नोड लिस्ट, क्योंकि सारे पे करेंगे तो इट विल नॉट वर्क, इस पे डॉट नहीं चलेगा, राइट? हमें वी नीड इंडिविजुअल एलाइज। अब इंडिविजुअल एलाइज कैसे मिलेगा? आप या तो मैन्युअली करो 0 1 2 3 इंडेक्स पास करके, या वी हैव हैंडी टूल फॉर ईच, ठीक है? तो फॉर ईच क्या करेगा, मैं सबको हटा देता हूँ इधर से अभी, ठीक है? फॉर आइटम डॉट फॉर ईच, और इस फंक्शन के अंदर एक एक एलआई हमारे पास आएगा। चलो उसको लॉग कर लेते हैं इधर ही, सो दैट हमें पता तो चले कि मिल कहाँ से रहा है। लॉक कर लेते हैं, और इधर हम लोग आइटम को लॉक कर रहे हैं। आइटम मीन्स एलआई, राइट? यू कैन नेम इट एलआई टू इफ इट इज कंफ्यूजिंग टू, ठीक है? इट मेक सेंस टू मी, एलआई भी नेम आप दे सकते हो, टोटली फाइन। सेव करोगे, नाउ यू कैन सी यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी एलआई। आप हावर करके भी चेक कर सकते हो, बाय मिल्क,
read this, dance and this one. Okay, so we are getting each and every allies. तो हमें पता है कि this tool is helping us a lot. It is providing each and every ally from this node list. तो हमें क्या करना होगा? We are getting individual ally here, right? So these are the elements. We can bind event on that. Okay, हमने क्या कहा, चलो भाई इवेंट बाइंड करते हैं li पे, li.add event listener, और इसके अंदर हम लोग इवेंट बाइंड करने में इंटरेस्टेड है, अभी कुछ पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इवेंट बाइंड कर दिया मैंने, बट मैंने ये नहीं स्पेसिफाई किया कि भाई सारे एलाइज पे, देखो 1 by 1 भी कर सकते हो, इफ यू वांट टू पास इंडेक्स बेसिस यू कैन डू, बट ये हमारे पास काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आप इसमें और आइटम्स ऐड करोगे ना तो आपको इंडेक्स पास नहीं करना होगा, फॉर ईच विल टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। ओके, तो नाउ li and add event listener means कि each and every one allies will come here, फर्स्ट वाला li आएगा, देन सेकंड वाला li, एवरी एलिमेंट के साथ इवेंट इट विल बाइंड। ठीक है, हम लोग बाइंड कर रहे हैं इधर ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब प्रोग्रामेटिकली वो कंप्यूटर करेगा, इट विल एग्जीक्यूट। फर्स्ट टाइम कौन सा आइटम आएगा, फर्स्ट वाला li आएगा, राइट, और li के पास ऐड इवेंट लिस्नर लगेगा और उस पर क्लिक इवेंट में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, तो हम लोग बोलेंगे भाई क्लिक। सब पे हम लोग एक साथ बाइंड कर रहे हैं, एक तरह से सारे एलिमेंट पे, कोई जरूरी एक एलिमेंट पे नहीं बाइंड कर रहे हैं, वी आर बाइंडिंग इट ओवर ऑल द एलिमेंट। ओके, so good, and definitely you can log li here, आपको इधर पता भी चल जाएगा कि क्लिक करने के बाद वही वाला li आपको मिलने वाला है। ठीक है, अब क्लिक करोगे तो आपको li मिलेगा ना, राइट, उसी li पे आपने इवेंट बाइंड किया और वही li आप लॉग भी कर रहे हो, टोटली फाइन, इट वर्क्स। ओके, सेव करते हैं एंड इधर आते हैं, तो इट इज अ नोड लिस्ट, बट चलो मैं क्लिक करता हूं, अब मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी इवेंट इज बाइंडेड। ठीक है, इवेंट बाइंडिंग का टास्क हो गया है जब ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है तभी। ठीक है, क्लिक करने के बाद तो उस इवेंट पे हम लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, करेक्ट। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, इवेंट तो पहले ही प्रायरली बाइंड करके रख रहे थे ना, जब क्लिक कर रहे थे देन दिस फंक्शन वाज गेटिंग ट्रिगर्ड। अभी इतने में हमने क्या किया है कि सारे एलआई पे इवेंट बाइंड करके रेडी रखा है उनको। ठीक है, अब मैं जब क्लिक करूंगा तो फिर जो भी लॉजिक हम लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, मैं उसी एलआई को लॉग इन कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दैट, तो हमें एक एलआई मिलना चाहिए। ठीक है, बट अगेन यहाँ पे हम अदर लॉजिक भी इंप्लीमेंट, मैं इस पे क्लिक करूंगा, you can see we are getting the li by mail, इधर क्लिक किया, we are getting dance। ठीक है, we are getting that li, क्योंकि सारे li पे हमने इवेंट बाइंड कर रखा है। ठीक है, that means what, कि फॉर ईच एक हैंडी टूल की तरह, मतलब ऐसे कुछ हुआ है 4 टाइम्स। अगर आप li में इंटरेस्टेड नहीं हो ऐसे वाले में, तो डेफिनेटली आप ऐसे भी बाइंड कर सकते हो, वही सारा कुछ शॉर्टकट में हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, li, और इधर आप इंडेक्स पास करोगे 0, एग्रीड, बात तो वही है ना, अभी हम लूप के थ्रू कर रहे थे, राइट और रॉन्ग, राइट सर हम इंडेक्स से अलग अलग इवेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं, इंडेक्स हाँ तो वो हाँ तो प्रॉब्लम यही है कि हाँ आप ऐसे सब पे अलग अलग इवेंट बाइंड कर सकते हो, क्लिक, डबल क्लिक, माउस ऑन, माउस ओवर। ठीक है, इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी है ये, लेकिन जब आप लूप थ्रू करोगे तो वहां पे फिक्स इवेंट बाइंड करते हो, क्योंकि ऑटोमेटिक वो एग्जीक्यूट होता है। तो आप कर सकते हो li इंडेक्स 1 और सेम इवेंट, मतलब सेम कॉपी में क्रिएट कर लेता हूँ, उसमें 1 2 3 कर दूंगा, और इधर लॉग कर लेते हैं हम लोग, सो दैट हमें पता तो चले, console.log and you click the ओके। अब मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर रहा हूँ, देखो मैनुअल कर रहा हूँ मैं, फॉर ईच नहीं यूज किया मैंने, इट इज टोटली पॉसिबल। यहाँ पे फर्स्ट वाले के साथ हमें बाइंड करना, क्योंकि नोड लिस्ट है, इंडेक्स के बेसिस पे आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, और यहाँ पे li नहीं आइटम होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, आइटम है ना, आइटम का नेम है ना, आइटम इज द नोड लिस्ट, करेक्ट। ठीक है, और ये 4 आइटम्स है तो 4 टाइम्स मैनुअल बाइंडिंग इसको बोलते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे मैंने इवेंट बाइंड किया, और थर्ड मतलब अब देखो सिंपल था, इवेंट बाइंड करके रख दिया, बट नथिंग इज हैपनिंग, अभी कुछ भी हमने इवेंट परफॉर्म नहीं किया, बट वी आर वेटिंग फॉर दैट इवेंट, कि जब तुम 0 वाले पे क्लिक करोगे तो यू क्लिक्ड तभी मैं प्रिंट करूंगा,
वन पे क्लिक करोगे तब भी यू क्लिक प्रिंट करोगे, बट इस केस में यू हैव कंट्रोल, आप अलग अलग मैसेज प्रिंट कर सकते हो, राइट, क्योंकि आप स्पेसिफिकली उसी एलिमेंट को टारगेट करके बाइंड कर रहे हो, करेक्ट? यस सर। ठीक है, लेकिन लूप के में आपके पास वो रिपीटिशन होता है सेम थिंग का, तो वहां पे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बट अगेन वी कैन डू सम अदर थिंग्स टू सॉल्व दिस दैट प्रॉब्लम। ओके, तो गुड, तो इंडिविजुअली आप कर सकते हो, बट यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या नहीं है, अगर मान लो किसी पर्सन ने आया और इधर पे एक और आइटम इंजेक्ट कर दिया, तो फिर आपका ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा लास्ट वाले आइटम के लिए, करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो सेव करते हैं एंड लेट अस कम हियर। अब देखो 4 आइटम्स के लिए तो इट विल वर्क, जीरो पे मैंने बाइंड कर रखा है, क्लिक सब पे क्लिक, बट आप चाहो तो इधर अलग अलग इवेंट भी बाइंड कर सकते हो विदाउट एनी इशू, बट अगेन इतना सारा रिपीटिशन बेटर यूज फॉर मतलब लूप्स, फॉर ईच हमने भी यूज किया था, तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दैट, यू क्लिक्ड, इस पे क्लिक करोगे यू क्लिक्ड, क्योंकि सब में हमने सेम मैसेज पास किया है, यू क्लिक्ड। ओके, बट अगेन यहाँ पे यू हैव कंट्रोल कि आप आइटम जीरो भी प्रिंट करा सकते हो कि हाँ भाई इस पे क्लिक किया है आपने, और इधर आइटम वन आप प्रिंट करा सकते हो। अगेन इट्स अ नोड लिस्ट, तो नोड लिस्ट आर वेरी वेरी similar to like arrays, but exactly not arrays. And I think 0 1 2 3. Okay, so इस केस में you will get the items too, कौन से पे क्लिक आपने किया है। Okay, because this time we are hard coding the things, ठीक है, so now it is working, you can see you clicked, but buy milk वाले पे you clicked like read this one, you clicked something this and you click this one, again आप इसमें स्टाइल लगाना है तो item 1 dot style equal to जो अभी मैंने CSS लगाया था, but this is a repetition, too much repetition। ओके, यहाँ पे इवन आपको ई ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं, हालांकि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास हो रहा है, सबके पास ई मिल रहा होगा, ठीक है, when you are performing the event you are getting the e object in each and every function, but आपको इवन इसमें टारगेट देखो, इस वे में भी सेम आइटम आप लोगे, अगर ऐसे इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ई डॉट टारगेट भी आपको सेम आइटम देगा, ठीक है, तो लूप्स जब आप रिपीट करोगे ना तो ई डॉट टारगेट इज वेरी वेरी हैंडी टूल, वो आपको बता देगा कि इवेंट कहाँ पे हुआ है। इस केस में तो हम स्पेसिफिकली उसी प्लेस पे जाके इवेंट बाइंड कर रहे हैं, उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, लूप थ्रू करके टुगेदर इवेंट बाइंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लूप्स को असाइन कर रहे हैं कि भाई बाइंड द इवेंट फॉर मी, आई डोंट वांट टू राइट दिस मच ऑफ code। Okay, so I'm just going to go back, same code I want to bring again, the for each one, this one। Okay, and if I save, इसको भी हटाते हैं, तो अगेन वही सेम यहाँ पे हुआ है, but for each and every item I'm just interested to item dot add event listener, तो these are the LIs, आपको LI नेम देना, whatever name you want to provide, एड इवेंट लिस्नर, क्लिक, तो एवरी इवेंट पे सारे एलआई पे इवेंट बाइंड हो गया, बट मुझे फिगर आउट करना लूपिंग सेगमेंट में कि कैसे हम लोग ये फाइंड आउट करें कि वेयर द इवेंट इज अकर्ड, उस केस में हम इस ई ऑब्जेक्ट का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, तो ई डॉट टारगेट आपको क्या देगा, जहां पे आपने क्लिक परफॉर्म किया, ऑन व्हाट एलिमेंट यू हैव क्लिक, तो ये सिंपल सा स्वीट सा कोड है, राइट, एंड इट इज टोटली वर्किंग। ओके, नाउ इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, perfect. So let us stop by here. Meet in the next class. Thank you so much. Good night. Okay sir, good night, bye. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.